Hello everyone, welcome to Abhyarti IAS, day 26 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. With reference to forest fires in India, consider the following statements. Northeastern India showed the highest tendency for forest fires according to Indian State of Forest Report 2021. Statement 2. According to Forest Survey of India, severe fires occur particularly in dry deciduous forest, while evergreen and semi-evergreen forests are comparatively less prone. So we have to select whether statement number 2 is the best and correct explanation for statement number 1. And the answer is B. That is statement number 1 and 2 both are correct, but statement number 2 is not the correct explanation for statement number 1. तो रिसेंटली अभी उत्तराखंड में काफ़ी भीषण फॉरेस्ट फायर देखने को मिली. तो देयर वाज एन आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस जिसने ये डिस्कस किया कि कैसे ये फॉरेस्ट फायर्स जो हैं हिली एरियाज में लगती हैं एंड कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर बेसिकली इंडिया में देखने को मिल रही है. तो एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नियरली 36% इंडिया का जितना फॉरेस्ट एरिया है इट इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट होते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई. इन्हीं मंथ्स में ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है. एक रीज़न तो ये है कि सबसे पहले जैसे विंटर खत्म हुई होती है और टेम्परेचर राइज कर रहा होता है क्योंकि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ रहा होता है. और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, ट्री स्पीसीज, जिनके पत्ते स्पेशली समर में झड़ते हैं और इसकी वजह से जो ड्राई मास है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि जैसे पत्तों की शेडिंग समर सीजन में होती है तो बहुत टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बायोमास इकट्ठा हुआ होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है और खुद में ही इग्निशन होनी स्टार्ट हो जाती है. तो इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाती है. तो इसी की वजह से ये जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट हैं दे आर मोर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर वाइल द एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मोंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट दे आर लेस प्रोन टू फॉरेस्ट फायर. And according to the Indian State of Forest Report of 2019, nearly 4% of country's forest cover it is extremely prone to fire, whereas 6% of forest cover it is very highly likely prone to fire. But जो Forest Survey of India का analysis है, which was given in the Indian State of Forest Report of 2021, इसमें ये भी पाया गया the states in the northeastern India they show a higher tendency of forest fire. Moreover, parts of western Maharashtra, southern Chhattisgarh, central Odisha, and regions in Andhra Pradesh, Telangana, and Karnataka, they have many patches of forest which are extremely and very highly likely prone to forest fires. Additionally, there is some information about the forest and tree cover of India as per the Indian State of Forest Report 2021. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाया जाता है ये कौन से क्लास का है? इट इज़ ओपन फॉरेस्ट विच इज़ अबाउट 9.34%. देन सेकेंड नंबर पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड फोर्थ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट. टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में है 21.71%, वेयर एज टोटल ट्री कवर है 2.91%. टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के हो गया 24.62%. Ministry of Environment it is implementing Nagar Van Yojana and it was started in the year 2020. इसमें क्या है कि 600 नगर वन 400 नगर वाटिका बनाए जाएंगे विद इन द कंट्री 2020 से 2024-25 तक लेके. और इसमें फंड्स कौन से यूज किए जाएंगे? द फंड्स विच आर मेड अवेलेबल अंडर द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, कैंपा फंड, उन फंड्स का यूज करके नगर वंस और नगर वाटिका को बनाया जाएगा. कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. Next question. Consider the following statements about Global Biodiversity Framework Fund. Global Biodiversity Framework Fund was launched at COP28 at the United Nations Framework Convention on Climate Change, which took place in Dubai. It aims to help countries to achieve the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework target. The Kunming Montreal Global Biodiversity Framework prohibits the use of biodiversity after 2050. How many of the statements given above are correct? And the answer is A. That is only statement number 2 is correct and statement number 1 and 3 are incorrect. तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया ऑन May 22. May 22 को हर साल वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है. तो व्हाट हैपेंस इज कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर बाय 2030 एटलीस्ट 200 बिलियन का फंड रेज करने की बात की गई है एंड ये 200 बिलियन हर साल रेज किया जाएगा फ्रॉम
फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पब्लिक एंड प्राइवेट, ताकि जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान्स हैं उनको अचीव किया जा सके अंडर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें एक ये प्रोविजन, ये प्रावधान रखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे शुड गेट एटलीस्ट 20 बिलियन, 20 बिलियन हर साल by 2025 and at least 30 billion by 2030 through contributions from developed countries। इसमें क्या है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो कि एक मल्टीलेटरल बॉडी है, इसको कहा गया है कि आप एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाएं टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात हम करें तो ये लॉन्च किया गया था ऑन अगस्त 24, 2023 एट द 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि हुई थी वैंकूवर कनाडा में। So in the statement we were given that Global Biodiversity Framework Fund is for launched at COP28 to the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि it was launched at the 7th Assembly of Global Environment Facility जो कि वैंकूवर में हुई थी। इस This fund has been ratified by 186 countries and इसका aim क्या है to support the implementation of Kunming Montreal Global Biodiversity Framework। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें 4 गोल्स बनाए गए हैं विच हैव टू बी अचीव्ड बाय 2050। किसके लिए? फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन 4 गोल्स के अंदर फर्दर 23 टारगेट्स हैं जो जिनको 2030 तक अचीव करना है। ये 4 गोल्स तो 2050 तक अचीव करने हैं, बट जो 23 टारगेट्स हैं इनको 2030 तक अचीव करना है। थोड़ा ईयर पे इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो वो ईयर के साथ, मतलब मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं, क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि ईयर के साथ फेरबदल किया जाता है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा सके। तो ध्यान से पढ़ लेंगे कि 4 गोल्स हैं 2050 वाले और 23 टारगेट है 2030 तक के लिए अचीव करने हैं जो। तो इसमें 23 टारगेट में क्या करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको बचाना है एंड ये इंश्योर करना है कि जो 30% डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं उनको इफेक्टिव रेस्टोरेशन प्रोग्राम के अंदर रिस्टोर करना है। अब इसमें कुछ जो टारगेट्स हैं फॉर 2030 दे आर लाइक प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर कंजर्वेशन, कंपनसेशन फॉर कंट्रीज टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, halting human activity and such other activities are also mentioned जो 23 टारगेट्स में हमें अचीव करनी है। आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना तो बेटर रहेगा। बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, इसमें जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं दे डू नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी का यूज जो करना है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कन्वेंशन है हमारी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसमें ये कहा गया है कि सस्टेनेबल यूज करना है बायोडाइवर्सिटी का। एंड जो भी सस्टेनेबल यूज होगा बायोडाइवर्सिटी का उसमें एक ये भी प्रावधान है कि बेनिफिट शेयरिंग का। तो अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि और इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं एंड इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर भी ऐसे ट्राइब्स हैं जिनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट ही बायोडाइवर्सिटी और उसके रिसोर्सेज के ऊपर है। तो ये कहना कि बायोडाइवर्सिटी की यूज को प्रोहिबिट करना है वो गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगी। बट इसमें क्या है कि सस्टेनेबल यूज करना है, बेनिफिट शेयरिंग करनी है जेनेटिक रिसोर्सेज की। तो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 2022 at the 15th meeting of Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity। जैसे कि हमने पढ़ा कि एडिशनली मई 22 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे भी कहा जाता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू एड्रेस वेरियस बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। 2024 के बायोडाइवर्सिटी डे का थीम क्या था? बी पार्ट ऑफ द प्लान, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का प्लान है उसका पार्ट बनना है, तो इसलिए ये थीम बनाया गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो प्लान है कि कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर उसमें एक बायोडाइवर्सिटी प्लान बनाया गया है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी। अभी रिसेंट स्टडी की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया था बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, जिसको बायोफिन बोला जाता है। इसमें ये क्लेम किया गया कि हर साल बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के ऊपर $52 बिलियन स्पेंड किए जाते हैं, बट ये फाइनेंस भी बहुत कम है क्योंकि हमें एट प्रेजेंट 150 से $450 बिलियन चाहिए होगा। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन ग्रैबिंग?
conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound, making mandatory provisions for environment cost in a government project or program, inclusion of ecological environmental cost in annual financial statement of a country, process of taking land and resources for environmental purposes often resulting in unjust development. And the answer is D. That is the process of taking land and resources for conservation of biodiversity ecosystem. It is known as green grabbing. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो ग्रीन ग्रैबिंग है इट इज़ अ मोर स्पेसिफिक टर्म एंड मोर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लैंड ग्रैबिंग, जिसमें मोटिव क्या रहता है, हमें ज़मीन ग्रैब करनी है, लैंड ग्रैब करना है फॉर इन्वायरमेंटल पर्पसेस, ताकि वहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए और इकोसिस्टम सर्विसेज के रेस्टोरेशन के लिए काम कर पाएँ, मोर स्पेसिफिकली कार्बन एमिशन ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए एंड फॉर द पर्पस ऑफ इको टूरिज्म। ये ग्रीन ग्रैबिंग का फिनोमिना देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है कि अराउंड 87% ऑफ टोटल लैंड ग्रैब्स जो होते हैं इंटरनेशनली दे हैव अकर्ड इन द रीजन्स ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली है, ज़्यादातर लैंड ग्रैब्स जो होते हैं उन्हीं एरियाज में देखने को मिलते हैं। एज पर अ न्यू रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम, तो लैंड ग्रैब्स के फिनोमिना में ये जो इमर्जिंग ट्रेंड है ग्रीन ग्रैब्स का, जिसमें क्या होता है कि लैंड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वहाँ पे कार्बन और बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें, क्योंकि अगर आपने इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा एक फिनोमिना होता है कार्बन क्रेडिट, इसमें क्या है कि कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए जाते हैं बाय सर्टेन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एफोरेस्टेशन वगैरह के इनिशिएटिव लेती हैं और उसमें कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट वगैरह वो रेज करती हैं। ये कार्बन क्रेडिट फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस परचेज कर सकती हैं और सेल भी कर सकती हैं विद इन द इंटरनेशनल कार्बन मार्केट। तो इसकी वजह से इमरजेंस ऑफ ग्रीन ग्रैब के फिनोमिना का देखने को मिल रही है। इसमें कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के लिए और क्लीन फ्यूल्स उगाने के लिए लैंड को ग्रैब किया जाता है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रीन ग्रैब्स हैं जिसमें ह्यूज एरिया ऑफ फार्मलैंड एक्वायर कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन, इट नाउ अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द लार्ज स्केल लैंड डील्स। जितनी भी लार्ज स्केल लैंड डील्स हो रही हैं उसका 20% ये ग्रीन ग्रैब के फिनोमिना से ही आ रहा है। बस इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करने के लिए ये कार्बन क्रेडिट और ग्रीन ग्रैब के फिनोमिना को स्टार्ट किया गया था, बट इसकी वजह से जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो उनका एक्सटेंट उतना नहीं है, जिसकी वजह से एक लैंड इक्वालिटी का सर्कल चल पड़ा है, जिसमें क्या है कि लैंड ग्रैबिंग होती है, में फिर ग्रीन ग्रैबिंग होती है, एक्सपेंशन की जाती है, इंक्रोचमेंट की जाती है वाया एस्टेब्लिशिंग अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स, और दूसरा ये है कि लैंड डिग्रेडेशन एंड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है एंड एक्सेस कम हो रही है फॉर द स्मॉल होल्डर इंडिजिनियस पीपल एंड मार्जिनाइज ग्रुप के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब उनके पास लैंड की एक्सेस कम हो रही है तो उनमें फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है एंड रूरल पॉवर्टी का फिनोमिना इमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, orans recently seen in news, what is it? Transgenic organs, sacred groves, industrial pollutants, or limestone landforms? And the answer is B. ओरांस जो कि रिसेंटली न्यूज में देखे गए हैं, दे आर सेक्रेड ग्रूव्स। बेसिकली राजस्थान में जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, उनको बोला जाता है ओरांस। ये सेक्रेड ग्रूव क्या होते हैं? बेसिकली देखा जाता है कि बहुत सारे स्टेट्स में कुछ ऐसे पैचेस ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं विच आर इधर अटैच टू अ टेम्पल और विच आर कंसीडर वेरी सेक्रेड टू अ कम्युनिटी, एंड ये कम्युनिटी क्या करते हैं कि उन ग्रूव्स में उन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करती है, उनकी कंजर्वेशन एंड उनके प्रेजर्वेशन इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी। तो जो ओरांस हैं दे आर द ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रूव्स विच आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं एंड इनकी प्रेजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूरल कम्युनिटीज के द्वारा की जाती है अंडर देयर कस्टम्स एंड अंडर देयर कस्टमरी रूल्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा जाता है कि सेक्रेड ग्रुप्स दे आर एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट डिटी विच इज वर्शिप्ड बाय दैट रूरल कम्युनिटी, एंड बहुत सारी रूरल कम्युनिटीज में तो ये भी देखा जाता है कि ये जो सेक्रेड ग्रुप्स है इनको ये इनवायलेबल होते हैं, मतलब इनमें से कोई पत्ता भी उठाना एक वर्जित होता है क्योंकि इनकी पूजा की जाती है बाय दीज रूरल कम्युनिटीज।
एंड इन कम्युनिटीज के द्वारा ये माना जाता है कि इन फॉरेस्ट ग्रूव्स में, सेक्रेड ग्रूव्स में हमारे जो फॉरेस्ट डीटी हैं वो प्रिसाइड करते हैं, एंड जो देवता हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, एंड जो बेसिकली फॉरेस्ट स्पिरिट है उसकी कंजर्वेशन के लिए इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि इन फॉरेस्ट का जो एरिया है ये इनवायलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उठाना वर्जित होता है बहुत सारी कम्युनिटीज में। बट ये कुछ कम्युनिटीज में आप गिरे हुए सूखे पत्ते उठा सकते हो, या फिर गिरा हुआ कोई भी प्रोड्यूस है उसको उठा सकते हो। तो आई होप आपको ये सेक्रेड ग्रुप्स का फिनोमिना समझ में आ गया हो। बेसिकली ये सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं दे आर वेरी मच रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सेक्रेड ग्रुप्स औरांस न्यूज में क्यों थे, क्योंकि रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें जो वेस्टर्न राजस्थान में कम्युनिटी डिवेलपर्स हैं उनको ये एप्रीहेंशंस बन गए कि जो उनका जो एक्सेस है टू द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लाइवलीहुड इट माइट गेट curtailed। तो इसकी वजह से क्या है, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, जिसमें क्या बोला गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट की जो रिकॉग्नाइज ओरान्स हैं, सेक्रेड ग्रुप्स हैं, उनको डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जस्टिफिकेशन दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट पास की थी, डायरेक्टिव दिए थे, इसमें बोला गया था कि जो ओरान्स, देव वंश एंड रून्स हैं दे विल बी कैटेगराइज्ड एज अ डीम्ड फॉरेस्ट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट बस उसी को ही फॉलो कर रही है। बट राजस्थान के जो ओरान्स हैं दे आर ऑल्सो होम टू एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड विच इज लोकली नोन एज गोदावल, एंड अदर स्पीसीज जो यहाँ पे पाई जाती हैं दीज आर चिनकारा, इंडियन डेजर्ट फॉक्स। Next question. Consider the following statements. At present, solar and wind power projects in India are exempted from environmental impact assessment. 100% foreign direct investment (FDI) is allowed under the automatic route in renewable energy sector in India. Which of the statements given above are correct? And the answer is C. That is, both of the statements given above are correct. अब इसमें क्या है कि एट प्रेजेंट सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो लगाए जाते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अंडर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006। तो मतलब अगर कोई भी सोलर विंड पावर लगानी है, प्रोजेक्ट लगाना है आपको, तो आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवानी पड़ेगी। बट अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि अगर हाईवेज बनाने हैं, हाइड्रो पावर का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इन 2018 उसमें उस जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम्स एंड ऑफ द ओरांस, जो कि सेक्रेड ग्रुप्स हमने ऊपर पढ़ा, दे हैव टू बी ब्रॉट अंडर द टैग ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट। कि अगर इनको डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में लाया जाएगा तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पे करवाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको सोलर या विंड पावर लगानी है, क्योंकि जैसे मैंने ये बताया कि ये जो ओरांस हैं वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में ये बेसिकली सेमी एरिड और एरिड रीजन में पड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जो भी सोलर और विंड पावर लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड है विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसकी कंजर्वेशन में दिक्कत आ रही है। कि ऐसे केसेस सामने आ रहे थे कि जो सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं उनकी वजह से जो ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड है उसको हानि पहुंच रही है। तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड। Ministry of New and Renewable Energy, it is encouraging the installation of renewable energy plants। इसमें क्या है, सबसे पहले तो एफडीआई को परमिट किया गया है। 100% एफडीआई इज परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसमें क्या है कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस का भी वेवर दिया गया है फॉर इंटर स्टेट सेल ऑफ सोलर एंड विंड पावर फॉर दोज सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली जिनको लगाया जाएगा बाय 30 जून 2025। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी, जो कि कैटेगराइज करता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज है ज़्यादा पोल्यूटिंग है, कौन सी इंडस्ट्री को ऑरेंज कैटेगरी में डालना है, कौन सी को व्हाइट कैटेगरी में डालना है, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि सोलर पावर जो जनरेट की जाती है थ्रू सोलो फोटोवोल्टिक सेल प्लांट्स और विंड पावर प्लांट्स को और हाइड्रो पावर प्लांट्स अप टू द कैपेसिटी ऑफ 25 मेगावाट, जिनको स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स बोला जाता है, इनको व्हाइट कैटेगरी में डाला गया। मतलब दे आर द लीस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। Additionally, Government of India it has also taken several steps to attract investment within the renewable energy sector। इसमें क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा FDI 100% अप्रूव की गई है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है टू अट्रैक्ट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन लगाई गई हैं डिस्कॉम्स के ऊपर। इसमें क्या है कि उनको कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी दे हैव टू परचेज फ्रॉम सच सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स प्लांट्स। अल्ट्रा मेगा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप किए जा रहे हैं
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंडर नए ट्रांसमिशन लाइंस बनाए जा रहे हैं एंड सब स्टेशंस की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है एंड वेरियस स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान पीएम कुसुम इनको प्रमोट किया जा रहा है टू एनहांस द सोलर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री एंड ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इनको लॉन्च किया गया है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी पावर थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी एक्सचेंजेस। और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। ये अनाउंस किया गया था एट COP 26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हिच वाज हेल्ड इन ग्लासगो यूके इन 2021। So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Bharti IAS.